नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वेलकम टू द स्पिरिचुअल जर्नी दर्शन सागर। आप सब जी का ये स्वागत है। ये आप जी का चैनल ते इस ते आपां गुरु महाराज दियां गल्लां करदे हां। मैनूं किसी ने पूछा कि तुसीं चंगियां मतलब कि वक्रियां वक्रियां जैकटां पा के जां शर्टां पा के आंदे हो, ते शायद मैनूं कुर्ता पजामा पाना चाहिए, पर मेरा जवाब ये सी कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਵ ਵਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਜ ਸਵਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜ ਸਵਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੋਤ ਮਿਲੀ, 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮਿਸ਼ਨ ਫੈਲਾਤਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵਟਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਬਟਾਲਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇ, ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸਫਾਈਆਂ, ਸੋ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਨੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਲੋ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਭਰਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, सचखंड नानक धाम। पहले तो सबसे पहले सारे सुनने वालों जितनी भी संगत सुनती है या जो भी इस वीडियो को देखता है उनके श्री चरणों में बड़े प्यार और सत्कार के साथ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने अपना कीमती टाइम निकाल के और इस चैनल को और शोभित करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए और इसका जो चैनल का पर्पज है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसको आगे बढ़ाते हुए सतगुरु महाराज दर्शन दास जी संस्थापक और संचालक, क्योंकि संस्थापक तो उस टाइम थे जिस टाइम उन्होंने बटाले से शुरुआत की, और संचालक जो अभी भी उनके कृपा से आज ये मिशन चल रहा है। तो उनकी हम बात करेंगे कि किस तरीके से महाराज जी ने जो मिशन है उसको स्प्रेड किया, कैसे ऑर्गेनाइज किया, और सबसे बड़ी बात ये कि आज जो डायरेक्टर्स बनते हैं उनको डिग्री लेनी पड़ती है, उनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उनको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उनको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं अपने आप को, और जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन और जो बिजनेस है उनको डेवलप करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ली जाती है। लेकिन हमारे को बड़ा मान है अपने सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के ऊपर, जिन्होंने के रब से डायरेक्शन ली और वहां से डायरेक्शन और सब कुछ वहां से लेके हम सबको बढ़ियाई दी, एक एक को जिनको सेवक भी बनाया, सेवक के साथ फिर उन्होंने कमेटीज के अंदर प्रधान, सेक्रेटरी, कैशियर बना के उनसे काम लिए और उनको दिखा दिया कि इस दरबार के अंदर एजुकेशन नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पर सिर्फ उसकी कृपा ही चलती है, कृपा ही काम करती है, जहां तक मैं समझता हूँ। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जो आपने कही है, ये आपकी बात 100% है कि यहाँ कोई भी एजुकेशन डिग्री नहीं काम करती, ये महाराज जी की कृपा की डिग्री काम करती है। तो वो कहते थे जब हम आए थे तो हमने अपना स्टाफ साथ में हमें मिलता है, जिसने हमें ड्यूटी दे के भेजा है उसने मेरा स्टाफ भी दे के भेजा है, इसलिए मैं उन लोगों को अपने साथ ये ड्यूटियां प्रदान करी। बिल्कुल, और हम सभी लकी बहुत किस्मत वाले हैं। देखो जी, जो पूर्ण संत होता है, जब एक बारी जो अपनी संस्था और मिशन शुरू कर देता है ना, वो पर दुनिया तक चलता है। जैसे हम पहले जो महापुरुष आए और जिन्होंने अपने मिशन चलाए अभी चल रहे हैं, तो इसी तरीके से सतगुरु महाराज दर्शन दास जी ने जो मिशन स्थापित कर दिया, वो अभी रहत की दुनिया तक चलेगा, वो चल रहा है, और ये उनके वचन भी हैं कि ये रुकने वाला नहीं है। जैसा कि आपने बताया अशोक जी कि महाराज दर्शन दास जी ने शुरू में बटाला साहब के अंदर सचखंड नानक धाम डेरे की स्थापना की। सचखंड नानक धाम जो कि रब्बी पैगाम देने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया, वहां से उन्होंने परमात्मा का जो मैसेज है वहां से शुरू किया, और उसके साथ फिर उन्होंने नामदान देने की जो प्रथा थी दरबार की, वो आरंभ कर दी, और जो सेवक जो भी बनता और जो परमात्मा से मिलने के लिए इच्छुक होता, वो नाम लेता और नाम का जाप करके उनको दिखा दिया कि जो आत्मा की शांति है वो नाम से है, और नाम के साथ और रब्बी पैगाम के साथ फिर उन्होंने आगे जग्गी का भी काम शुरू कर दिया कि जो हम दिखावे के लिए या आम आदमी के ऊपर जो दिक्कत मुसीबत आती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए फिर उन्होंने दास धर्म सजा दिया, और साथ ही साथ फिर कमेटीज बना दी सबको। जैसे पंजाब के अंदर कितनी कमेटी बनाई, और जैसा कि आपने बताया जलंधर से शुरू करने के साथ साथ बटाला में और कपूरथला साहब में, वो तो सब आपने पता ही है, और कितने सेवकों ने भी बता दिया है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के लिए हम आज बैठे हैं, तो फिर जितने भी हाँ जी, आपका मतलब ये है कि महाराज जी ने ये मिशन है रबी मिशन, ठीक है,
तो महाराज जी ने रब का प्रचार, रब की जो खुराक देने के लिए उसका नाम रखा सचखंड नानक धाम। ठीक है, सचखंड के यहाँ सच का प्रचार, रब की वाणी और रब का कीर्तन मिलता है। ठीक है, तो नानक धाम, नानक महाराज जी कहते थे कि मेरा वो परमात्मा, मेरा वो रहबर जिसने मुझे ये ड्यूटी दे के भेजा है, खुद निरंकार, उसका नाम नानक है। तो धाम वो कहते जी आपका डेरा, आपका क्या बोलते हैं जगह ये है, तो इसीलिए इसका नाम है सचखंड नानक धाम। आगे आपने बोला कि दुनियादारी के काम, कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, सत्संग कहाँ होने हैं, कितने बंदे जाने हैं, लंगर कौन पकाएगा, लंगर कौन, और उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या इंतजाम होगा। तो आपने बोला वो कमेटियां बना दी महाराज जी ने। सो हर एक टाउन की महाराज जी ने कमेटी बना दी। ठीक है, इसको स्प्रेड कर दिया। हाँ जी, अब जैसे सेवक इकट्ठे होने, उन्होंने सोचा कि हम गुरु जी का सत्संग कराएंगे, सत्संग कराने के लिए फिर कैसे ऑर्गेनाइज करना, ये सब कुछ महाराज जी ने सबको बिठा के मीटिंग करनी। मीटिंग करने के साथ फिर सबकी राय लेनी कि किस तरीके से हम अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी को कोई दिक्कत ना आए, और जो जहाँ पे प्रोग्राम करते हैं वहाँ आसपास हमने शांति का मैसेज देना है, तो शांति पूर्वक वहाँ पे जो है फंक्शन करने, तो और लंगर लगाने। ब्रिजमोहन जी सॉरी, आपको बीच में मैं टोक रहा हूँ कि इसमें मेरे को थोड़ा आ गया कि उस टाइम जब बाहर आपने बोला कि बाहर प्रोग्राम होंगे, बाहर लंगर लगेंगे, तो जब बाहर वहाँ प्रोग्राम होते थे महाराज जी के, तो वहाँ कैसे वो पंडाल कैसे होता था, गद्दी कैसे लगती थी, क्या बहुत संगत साथ में जाती थी, जहाँ बहुत क्या बोलते काफला जाके सारा कुछ सेटिंग करता था, क्या था इसमें अशोक जी, मैं आपको एक बहुत विस्तार अच्छी बात बताने वाला हूँ आपके साथ, कि महाराज जी ने एक अपने राज की बात बताई थी हमारे को, कि जहां भी प्रोग्राम होता है वहां पर हमारे जो रब्बी ताकत है वो 10 दिन पहले वहां पहुंच जाती है जी। 10 दिन पहले पहुंच के वो फिर जो वहां की काम सेवा करनी शुरू कर देती है। लेकिन जो वहाँ की कमेटी थी फिर वो वहाँ का अरेंज करती होती थी, और अरेंज करने के साथ साथ ऐसे काम होते चले जाते थे जो मिनटों के काम है उस सेकंडों में हो जाते थे, यानी दिनों के काम घंटों में, घंटों के काम मिनटों में, मिनटों के काम सेकंडों में हो जाते थे। यह इसीलिए बहुत इंटरव्यू में लोगों ने कहा है कि भी हमें पता नहीं चला लंगर कैसे बन गया, हमें पता नहीं चला प्रसाद थोड़ा था सबको कैसे बंट गया, टोकरी से प्रसाद ही नहीं खत्म हुआ। सो आपकी बात बिल्कुल सही है कि महाराज जी पहले ही वो कहते हैं मेरी ताकत वहां चली जाती थी सारे काम करने के लिए, महाराज भेज देते। और वहां पर इतनी सादगी के साथ, इतने मतलब कि आराम से फ्लोर पे बैठ के सबने लंगर पानी छक लेना, और सिंपल सादी जो गद्दी की सजावट होती थी वो करके, और महाराज जी का कीर्तन होता था, हजूरी रागी जो महाराज जी ने। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि महाराज दर्शन दास जी ने जिसको एक बारी कोई सेवा दे दी उसकी उन्होंने आगे तरक्की ही की, कि ये नहीं कि भी अच्छा किसी के कहने से या किसी के सुनने से या किसी से गलत काम हो गया, अनजाने में हो जाता है, कि उसको आउट कर दिया, नहीं, उसको सुधारा, जो भी प्रधान बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, जो आज तक इस दुनिया में है जिसको प्रधान बना दिया वो प्रधान ही है, ये नहीं कि उसको नीचे दिखा दिया, कुछ कर दिया, नहीं, उसको सुधार दिया ऑल द टाइम। और फिर वो जो कमेटी होती थी उस एरिया की, और उसको फिर वो सारा प्रोग्राम वर्कआउट करके उसको टेंट को और लंगर को सारा कुछ, ये नहीं था कि भी कौन करेगा कैसे होगा, कोई किसी को चिंता नहीं होती थी, बस एक बारी जो डेट फिक्स कर दी, टाइम फिक्स हो गया, उस टाइम महाराज जी ने आके सत्संग करना, और दुनिया के दुख दलिदर जो भी होते थे प्रॉब्लम्स वो काटने।
तो आपने जो बात करी है कि भी महाराज जी ने जब किसी को ड्यूटी दी या कुछ हजूरी रागी बनाया या कीर्तनी बनाया, तपलची बनाया, तो उसको आगे आगे लेके गए हैं, ये नहीं कि उसको छोड़ दिया या उसको निकाल दिया। इसकी बात मैं आपको महाराज जी की कहता हूँ। महाराज जी खुद कहते थे कि संत महात्मा एक बार जिसकी बाजू पकड़ लेते हैं और एक बार कह देते हैं कि हम तेरे हैं, जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ते। रब चाहे उसका साथ छोड़ दे, कहते, पर संत महात्मा उसका साथ नहीं छोड़ते जिंदगी भर, और रब से लड़के उसकी हर मांग पूरी करते हैं। ये महाराज जी ने कहा, हम ऐसे संत हैं। ठीक है, हम आपकी बुराई नहीं देखते, हम आप में गुनाह नहीं देखते, हम उसको पर्दा डालते हैं। ये संत का काम है, जिससे गुनाह हो गया, गलती होगी, उसके ऊपर पर्दा डाल के उसको सुधारें। अच्छा, इसकी बात महाराज जी ने एक सत्संग में भी बताई है। और किसी सेवक से कुछ गलती हो गई, वो दरबार में आना काम हो गया, तो महाराज जी ने दिल्ली के अंदर उस सेवक को देखा। जब वो देखा तो महाराज जी ने जो ड्राइवर थे बच्चन जी, उनको बोला कि कार स्टॉप करो। उन्होंने कार रोकी, रोक के उतर के उसको अपने गले लगा लिया। गले लगाया तो उस सेवक का नाम भी मेरे को याद नहीं है, तो कहनी एनीवे महाराज जी ने उसको गले लगाया। तो जो दूसरे सेवक थे गुरनाम, कहते हैं वो गुरनाम थे, महाराज जी के साथ वाक लेते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो साथ थे। हाँ हाँ। वो कहते हैं कि महाराज जी इस इतने बड़ी गलती वाले को आपने अपने साथ गले लगा लिया। तो महाराज जी कहते लोग हैं, क्या कहेंगे, अगर इसको लोग क्या कहेंगे, देखेंगे लोग क्या कहेंगे, कहते कोई क्या कहेगा इसका मुझे नहीं पता, लेकिन परमात्मा मुझे क्या कहेगा कि मैं नहीं गले लगाऊंगा तो और कौन गले लगाएगा इसको, और कौन गले लगाएगा। बस तो उसमें ऐसे होता था फिर अशोक जी कि जैसे जो प्रोग्राम किया, तो प्रोग्राम करने के लिए उन्होंने जो सेवा करते थे उनको एक वर्दी भी दी कि इन जो सेवा करने वालों की है पहचान अलग से हो। ये नहीं कि गुल मिल जाए, सब कुछ पता न लगे कौन कौन सेवा करने वाला है, कौन सेवा करने वाला नहीं है, किससे क्या बात करें, क्या मतलब उन्होंने वर्दी के साथ सजाया सेवक को कि जो सेवा करेगा वो वर्दी डालेगा, वर्दी के कानून कायदे बनाए हैं जी। और कानून कायदे कैसे बनाए, चिट्टी रंग की वर्दी बनाई उन्होंने, वो बेल्ट दी, पॉकेट साथ में प्रॉपर अलग तरीके से लगाई, जो कि एक जो वैसे कपड़े डालते हैं उससे टोटली डिफरेंट, टोटली अलग से शूज दिए। शूज काले रंग के भी शूज, जो प्रॉपर महाराज जी ने एक डिजाइन दिया। वो एक जो फरीदाबाद में दुकान होती थी वो आगरे से बनवा के लेके आया, और वो शूज वर्दी के साथ इतने नाइस लगते थे, इतने अच्छे लगते थे। तो वो तो आप जब आपने तो देखे होंगे। ब्रिजमोहन जी महाराज जी कहते थे कि ये सब दस्तार और ये जो यूनिफॉर्म है मुझे मेरे नानक ने दी है, सचखंड से मिली है, इसलिए उन्होंने सफेद आदमियों के लिए और बिस्कुटी लेडीज के लिए रखी थी, अलग से कलर दिया, अलग से रखी। तो जो उससे सीनियर थे उनके लिए उन्होंने एक थोड़ी सी ग्रीन टाइप की होती थी वो रखी थी कि सीनियोरिटी जो आगे खड़े होंगे। फिर उन्होंने जो बक्कल दिया था, बेल्ट दी थी और ये सारी पॉकेट, ये सब वो कहते हैं कि मुझे ऊपर से महाराज जी ने बैठ के ये तैयार करवाई थी सबसे पहले और फिर ये लागू करी थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब जिन्होंने देखा है और जो देखते होंगे कई बार वीडियो के अंदर कि जब वर्दी डाल के आप सेवा करते हैं, जैसे बॉर्डर के ऊपर एक सिपाही होता है, उस जैसा जोश होता है कि मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, और किसी को कोई ऐसा महसूस नहीं होने देना कि भाई कोई प्रॉब्लम आई है, किसी को कोई दिक्कत आई है। ये आपने कहा ना कि ड्यूटी करनी है, तो महाराज जी ने ये भी कहा था कि जब आपने वर्दी डाल ली, आप ड्यूटी पे हो, आप किसी के साथ हैंडशेक नहीं करोगे। अगर आपको जब ड्यूटी खत्म हो गई है, अभी वर्दी आपने नहीं उतारी, तो आप बेल्ट खोल देनी,
बेल्ट खोल देनी है, इसका मतलब आप ऑफ ड्यूटी हो, तो फिर आप किसी के साथ घुल मिल सकते हो। जब तक आप ड्यूटी कर रहे हो बक्कल आपका लगा होना चाहिए, आपके लिए सब बराबर हैं, और आपके लिए सब बराबर हैं। और फिर उसके साथ एक रुमाल दिया साइड में यहाँ रखने के लिए, साइड में, यहाँ कहीं भी आप कुछ आपको हो जाए, रुमाल से हाथ पूंजने, हाथ सुच्चे रखने एकदम हरदम। और इस वर्दी के ऊपर आपने कोई कोट नहीं डालना जब ड्यूटी करनी है। कोई रंग बिरंगे कोट नहीं डालने इसके ऊपर, सिर्फ यही हो। बिल्कुल ये। और अशोक जी, आपने भी प्रैक्टिकल करके देख लिया होगा, और बहुत से सेवकों ने भी देखा होगा, जब आपने वर्दी महाराज जी का नाम लेके सुच्ची सुच्ची करके डाली हुई है ना, आपको ना तो गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी, ना कुछ ऐसा महसूस होगा हा या कैसे। ये आपने प्रैक्टिकल कर लिया होगा जहां तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। इंग्लैंड में जब 1983 में आया था, तो हम विटन रोड पे रहते थे, तो वहां से जब वर्दी डाल के घर से आते थे पैदल, ऐसे ही आते थे। तो अभी जैकेट डाल के भी नहीं जा सकते, उस टाइम में ठंडी लगती है। तब क्या था पता नहीं, पैदल आते थे। जब भी मैं उधर से जाता हूँ मुझे याद आता है कि यार कितना मन में और शरीर में जोश था वर्दी पहन के वहां से पैदल आना। बिल्कुल। और क्या आनंद था कि आपको किसी चीज की कोई वो नहीं, बस एक ही टारगेट होता था कि मैंने महाराज जी के दरबार में जाके सेवा करनी है, महाराज जी के मिशन की सेवा करनी है। और जब आप ऐसा करते थे तो वहां पर जो बड़ी बात यह है कि जब तिलक लगा होता था, वर्दी डली होती थी, और इसके साथ महाराज जी ने किया कि जो क्लीन शेव है लाइक मी, वो अपने क्लीन शेव रखें, बाल प्रॉपर रखें, तो ये नहीं कि भी इधर उधर से बिखरे बुखरे हैं, मतलब आधी दाढ़ी रख ली, कई आधी दाढ़ी रख लेते हैं, कई ये कर लेते, वो कहते हैं नहीं, जहाँ तो पूरे सरदार और जहाँ पूरे सहजदारी। अगर आपने केस रखे हैं तो प्रॉपर केस रखे हैं, उनकी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। और दस्तार दी महाराज जी ने, क्या बात है, जो दस्तार की सजावट है वर्दी के साथ, क्या आनंद है उसकी सजावट के साथ का तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, बस मैं उसको इतना मैं कह सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि महाराज जी ने दरबार भी सजा दिया, वर्दी भी दे दी, मत्थे पे तिलक भी लगा दिया, और जैसे काले वस्त्र नहीं डालने इसकी भी मनाही कर दी। उनके प्रॉपर रूल रेगुलेशन हमारे को बताए कि भी ये नहीं कि भी चलो जी कुर्ता पजामा आया कैसे, नहीं, ऐसा नहीं कुछ था। उसके भी असूल बनाए, असूलों के साथ फिर जैसे आपने क्या किसी के साथ हाथ नहीं मिला सकते, किसी को तो ऐसे जफी जुफी पा के ऐसा नहीं। और ड्यूटी पे हाथ पीछे करके खड़े होना, आदमी हाथ पीछे करके खड़े होंगे और लेडी जो है ऐसे करके हाथ ऐसे आगे करके होंगी। ये महाराज ने कहा लेडी ऐसे करेंगी, आदमी ड्यूटी पे हाथ पीछे करेंगे, बिल्कुल पीछे करेंगे। अच्छा, आपने इसकी सजावट भी देखी होगी कि जब हम संक्रांत के भंडारे पे या कोई कहीं पे प्रोग्राम हो रहा है, तो 5 सेवक एक साइड में और 5 सेवक एक साइड में होके सभी आने वालों का नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने शरबत के साथ स्वागत करते होते थे, ताकि आने वालों को ये एंट्रेंस में ही पता चल जाए कि ये रब्बी दरबार है, ये कोई ऐसी कोई पॉलिटिकल दरबार नहीं है, कोई ऐसा कोई जो हजूम नहीं इकट्ठा किया। जैसे महाराज जी कहते थे, मैं हजूम इकट्ठा करने के लिए नहीं आया, मैं अपने सेवक इकट्ठे करने के लिए आया हूँ। और उन्होंने आज वही करके दिखाया कि जो भी सेवक मिलता है तो वो अलग ही फीलिंग होती है। हाँ, वो कहते थे कि भी अगर मैं हजूम इकट्ठा करना चाहूँ तो एक दिन में कर दूं। कहते ये तो जो गाने वाले हैं, एक्टर हैं, यहाँ मजमा लगाते हैं, लाखों लोग आ जाते हैं, उसका क्या है। हम तो वो ढूंढते हैं जो भगवान के आशिक हैं और जिनको हमने लेके जाना है। हमें हजूम नहीं चाहिए, हमें लाखों नहीं चाहिए, हमें उसके प्यारे चाहिए, उसके चाहवान चाहिए। और अशोक जी, आपने भी नोटिस किया होगा
कि जो महाराज जी ने सेवक चुन लिया, आज वो सेवक अपनी जान देने के लिए तैयार होता है अपने सेवक गुरु के लिए। इतने उन्होंने, इसीलिए उसी के दीवाने, वो कहते हैं मैं तो अपने दीवाने, और वही दीवाने इकट्ठे हैं जो आज उसकी एक बोल पे, एक ही आवाज पे और इकट्ठे हो जाते हैं और उसके लिए जान, तन, मन, धन के लिए तैयार हो जाते हैं एकदम से। ये भी महाराज जी को बड़ा मान होता है अपने सेवकों के ऊपर जब ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये प्यार है उनका। पर लेकिन वो कहते थे मैंने आपसे लड़ाई नहीं करानी, मैंने आपसे कोई नारे नहीं लगवाने, इसलिए उन्होंने कहा था कि हमने दास धर्म बनाया। दास धर्म में जो दास धर्म के मेंबर होंगे, उसके सेवादार होंगे, वो शस्त्र नहीं रखेंगे, किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ पीछे करके नानक नाम करेंगे, ठीक है। उन्होंने सबको रखा, कोई भी वेपन अपने साथ नहीं रखेंगे किसी किस्म का भी। और दूसरा, आप जी ने कहा कि दास धर्म सजाया, तो दास धर्म उन्होंने सजाया कि ये लोक भलाई करेगा, लोगों की मदद करेगा और सर्वदा भला जाके करेगा, क्योंकि सत्संग अलग और ये लोग लोगों की सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और वो महाराज जी ने सेवकों से कराई। जी जी। तो अब हम आगे चले, आगे बढ़े। तो कहते थे कि महाराज जी ने लिखा ना, फिर हम करने आए लोक भलाई, दुख हर सतगुरु नाम दे आई, हम करने आए लोक भलाई, शब्द भी महाराज ने लिखा। और उन्होंने जो महाराज जी ने एक बात और कही है, सत्संग में भी है, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर महाराज जी ने कहा कि हम भलाई करने के लिए आए, उन्होंने जग्गी तौर पे भी लोगों की भलाई की और रब्बी तौर पे भी भलाई की है, कर रहे हैं और करेंगे। इसके साथ दास धर्म जो आपने बोला सजाया, तो ये तो हो गया दास दास सेवा करेगा, वो सारे सियाने हैं जो जोश वाले हैं, सॉरी होश वाले हैं, जिनमें होश है, वो दास धर्म है। तो उसके साथ जोश पैदा करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? हाँ जी, अब बात आती है कि जोश वाली, ये दिन था जी 5 मई 1983 जी। तो उस दिन महाराज जी ने आदेश किया कि आज हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन, नई संस्था स्थापित करने जा रहे हैं। एक वीक पहले ऐसी कुछ प्लानिंग चली हुई थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 5 मई को। जी। 5 मई को राउंड अबाउट तकरीबन 8 बजे की बात है, 7 और 8 बजे के दरमियान उन्होंने टाइम सेट किया कि आज दरबार साहब लोनी, बटाला साहब के बाद फिर उन्होंने लोनी आके सचखंड नानक धाम की स्थापना की थी। तो वहां पर दरबार साहब सजाया, काफी अच्छा, साफ सुंदर, और उसके अंदर उसके जो वो 3rd फ्लोर पे थे और जो ग्राउंड फ्लोर पे थे उसमें ऑफिस थे। तो उनमें वहां पर महाराज जी ने किया कि यहाँ पर एक मीटिंग करेंगे, मीटिंग के अंदर एक नई संस्था हम आज स्थापित करेंगे। तो तकरीबन 8 बजे सभी वहां पर कुछ पेपर के ऊपर एप्लीकेशन वगैरह, फोटोज वगैरह जो मीटिंग के अंदर आए हैं और मीटिंग जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, वो ऐसा कुछ किया गया। तो मेरे को भी उस दिन मौका मिल गया। वैसे काफी लंबी स्टोरी है, लेकिन उसका शॉर्ट करके बताएंगे कि 5 मई को 8 बजे लोनी में दरबार साहब के नीचे महाराज जी के ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई। उसके अंदर तकरीबन हम लोग तकरीबन 30 जो महाराज जी के सेवक थे वो इकट्ठे थे। सारे तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र तक के सभी हम मेंबर्स वहां पे इकट्ठे हुए। तो महाराज जी ने सबसे पहले एक क्वेश्चन किया कि आप इलेक्शन चाहते हो या सिलेक्शन चाहते हो। तो वहां पर उस मीटिंग में कुछ सुलझे हुए जो कि रब्बी लैंड से पहले से अटैच थे, महाराज जी से अटैच थे, तब वो अंडरस्टैंड कर गए
कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं, यहाँ पर सिलेक्शन होनी है। तब तो उन्होंने महाराज जी से रिक्वेस्ट की कि महाराज जी हम इलेक्शन नहीं चाहते, हम सिलेक्शन चाहते हैं। तब महाराज जी ने एक्सप्लेन किया कि हम लोग आज जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था बनाएंगे उसका नाम, अच्छा वो उन्होंने महाराज जी ने क्या कहा कि क्या आज क्या नाम देना है? जो युवा दासधर्म उसका नाम देना है। अच्छा। जो पहले दासधर्म है, दासधर्म के अंदर जो यंग जनरेशन है उनको हम नया नाम देंगे, जो कि जो फुर्तीले से एक्टिव ज्यादा होके काम करेंगे, उसका नाम देना है हमने युवा दासधर्म। और उसके अंदर एक 5 मेंबरों की कमेटी बनाई जाएगी जो कि उसको रन करने में सहयोग देगी, जो फ्रंट लाइन पे आगे होंगे जी। तब उन्होंने कैशियर, सेक्रेटरी, प्रधान और ये मतलब बनाए 5 मई को 1983 में जी। और फिर साथ में सेवा समझाई कि जो भी प्रोग्राम होते हैं कहीं पर भी वहां पर आपने आगे जाके सेवा करनी है। और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है आसपास में या जहां पर भी हम पहुंच सकते हैं, कोई किसी तरीके की दिक्कत आती है, कहीं पर लंगर लगाना है, तो उसके लिए हमने आगे ये जो नए मेंबर हैं ये सजाए हैं। उन्होंने मतलब कहने का ये है कि जो दास धर्म थी उसमें वो भाग दौड़ नहीं कर सकते थे, उन्होंने युवा दास धर्म सजाई जिसका नाम YDD युवा दास धर्म रखा। और ये लोगों की लोग भलाई कराएंगे, यहाँ भी कोई आफत मुसीबत आएगी वहां जाके उनकी मदद कराया करेंगे, यहाँ भी सत्संग बार होंगे, ये जाके वहां अपना सारा काम देखा करेंगे। हाँ, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने के साथ फिर उन्होंने क्या कि जो जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। तो कुछ लोगों ने कुछ ने हाथ खड़े किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन फिर महाराज जी ने अपने हिसाब से जो भी उनके सामने आया तो उनको फिर 5 मेंबरों को सिलेक्ट किया। तो उसमें भी मेरे को भी मौका मिल गया था सेवा करने का, तो मेरा नाम उन्होंने आगे किया। तो इस तरीके से ये जो है कमेटी बनाई गई। जब ये कमेटी बन गई, ठीक है, तो उसके बाद आपको याद है कि पहला कार्यक्रम आप कहाँ ये एक्टिव मेंबर कहाँ गए, कोई कहीं भला करने के लिए या कुछ करने के लिए पहला प्रोजेक्ट आपको क्या मिला? पहला प्रोजेक्ट ऐसा हुआ था जी कि एक दिल्ली के सादरे के पास में एक जगह है, वहां पे झुग्गियों के अंदर आग लग गई अचानक जी। और देखो उसी टाइम किसी सेवक ने आके दरबार में बता दिया कि ऐसे फायर हो गई है और वहां पर किसी को खाने के लिए कुछ नहीं है, वहां पर उनको हेल्प चाहिए लोगों को जी। तो हमने आपस में बैठ के बातचीत की और लोनी दरबार में जो लंगर घर था वहां पे लंगर अरेंज किया और ट्रैक्टर था उनमें लंगर वगैरह रखे, सभी मेंबर साथ में जाके वहां पे शाम को किसी को भूखे नहीं सोने दिया। देखो महाराज जी की कृपा। वाह, ये है हजूर महाराज दर्शन दास का क्या कहते हैं कि विजन है। सत्संग कीर्तन एक तरफ और दुनिया का भला और ये सरबत का भला, ठीक है। कहाँ भी आफत मुसीबत कहीं भी, यस। हाँ, तो मतलब कि पता होना चाहिए था कि यहाँ पर कोई हेल्प की जरूरत है, तो उसी टाइम तैयार हो जाते थे। और कुछ सेवक थे जो फुल टाइम थे, कुछ सेवक थे जो पार्ट टाइम करके अपना काम करके फिर आ जाते, फिर सेवा में लग जाते थे। एवरी संडे हमने दरबार में मीटिंग्स करनी और अमावस के भंडारे पे मीटिंग करके सभी को सेवा देनी कि कौन सेवक है जो फ्रंट पे जो गेट है, गेट के पास खड़े होके एवरीबॉडीज का सभी का वेलकम करेंगे, कौन जो सत्संग के अंदर है वहां पर खड़े होके सेवक को सभी सेवकों को गाइड करेंगे कि किस टाइम मत्था टेकना है, किस टाइम आपने वहां पर स्टॉप कर लेना है, सत्संग के टाइम में कोई आगे नहीं जाएगा।
वहां पर कोई मत्था नहीं टेक सकता, तो वहां पर सेवक खड़े होते थे। किसी को जल की जरूरत होती थी कि जल कहाँ से मिलेगा, कब तक मिलेगा, लंगर घर कब तक खुलेगा, ये सब चीज बताने के लिए कोई नवे सेवक आते थे। वो सब इस तरीके से तो सारी इंफॉर्मेशन डेरे में भी जब बड़ा प्रोग्राम होता था तो युवा दास धर्म देता था। सो युवा दास धर्म डेरे में फिर ड्यूटियां करते थे, ठीक है। तो उस टाइम तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन नहीं थे और प्रिंटिंग नहीं थी, उस टाइम तो आदमियों की जरूरत थी। तो ये महाराज जी की कितनी आगे की दूरदृष्टि कि उन्होंने कैसी ये सोच सोची, कैसे सेटअप किया। सो एक रब होते हुए भी एक जग का कितना बड़ा उन्होंने ये एक सिस्टम सेट कर दिया कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, देखो, और सबसे बड़ी बात ये कि अशोक जी, महाराज जी का सबसे बड़ा विजन क्या था कि जितने भी मिशन से अटैच कर सकते थे, वो जो भी सेवक आते थे, तो उनको शराब, मांस, संडा, बीड़ी, सिगरेट, सब नशाओं से, बुरी आदतों से दूर रखा। अदरवाइज तो एक बारी कोई यंग जो इस अर्ली एज के अंदर एक बार रॉन्ग ट्रैक पे चला जाए तो कितनी मुसीबत होती है। लेकिन उनको उन चीजों से दूर रखा, और जो युवा दाश्रम थी उनको स्पेशल मैसेज दिया कि बाहर जाके आप नुक्कड़ों पे मीटिंग करें, स्पीच करें कि इस चीज से बचें। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि महाराज जी की विजन थी कि यंग जनरेशन को भी बचाओ और जो सियाने हैं उनको नाम दो, भक्ति कराओ। सो ब्रिजमोहन जी, आज के लिए इतना ही। टाइम इजाजत नहीं देता, टाइम जो है अभी खत्म हो गया है। तो आशा है कि जो आप जी ने बताया है लोगों को मिशन के बारे में पता चलेगा कि कैसे मिशन था। आगे अगले एपिसोड में हम इसके आगे चलेंगे कि आगे जाके महाराज जी ने कैसे कैसे कमेटियां सजाई इंडिया में और इधर इंग्लैंड में, अर्जोई कैसे दी, बाणी लिखी गई। तो ये सारी जो अगले एपिसोड में करेंगे। सो आज के लिए साडे दोनों दी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। गलती होगी और एक चुक माफ। हाँ जी।